تراویح میں ختم قرآن پر لین دین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ختم مستقل یہ ایک عبادت کی چیز ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے اس کو لکھا ہے فتاوی شام، جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 433، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے فتاوی شامی کا، اس کی دوسری جلد صفحہ 497 پر ہے۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا اور طے کر کے یا معروف طریقے پر ختم قرآن کریم کر کے اجرت کو لینا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم پڑھا کرو اور اس کو کھانے کمانے کا ذریعہ مت بناؤ، اور نہ اس سے مال و دولت کی کثرت حاصل کرو اور نہ اس سے اعراض کرو اور نہ اس میں غلو سے کام لو۔ یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 5ویں جلد صفحہ 240 حدیث نمبر 7825 ہے۔ حضرت واقد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زادان، پہلے زا ہے پھر ذال ہے، زادان رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرآن کریم کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنائے گا وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈی ہی ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ یہ روایت پہ مصنف ابن ابی شیبہ جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 5ویں جلد صفحہ 238 حدیث نمبر 7824 نمبر کی ہے۔ اب یہ روایت اور اس جیسی دیگر روایات کی بنا پر حضرات صحابہ اور سلف صالحین نے تراویح میں قرآن پاک پر اجرت کو قبول نہیں کیا۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ حضرات صحابہ یا تابعین نے اجرت کو قبول کیا، ایسا نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کو سنا کر کے اس پر اجرت کو قبول نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں لوگوں کو تراویح پڑھائی۔ جب عید کا دن آیا تو ان کی خدمت میں عبید اللہ بن زیاد نے ایک جوڑا اور 500 درہم پیش کیے آپ کے لیے ہدیے کے طور پر، تو آپ نے انہیں لوٹا دیا اور فرمایا کہ ہم قرآن کریم پڑھنے پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے۔ یہ عبارت جو ہے، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد صفحہ 237 حدیث نمبر 7821 ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر بن نعمان بن مقرن سے بھی منقول ہے۔ ان کی خدمت میں حضرت مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح میں قرآن پاک سنانے پر 2000 درہم پیش کیے اس زمانے کا، لیکن موصوف نے صاف جواب دے دیا۔ حضرت مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا کہ ہم قرآن کو دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھتے۔ یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد صفحہ 237 حدیث نمبر 7820 ہے۔ اب ان جیسی روایات، یہ روایت اور ان جیسی دیگر روایات کی روشنی میں موجودہ دور کے اکابر اہل فتویٰ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا دارالافتاء وغیرہ سے کہ تراویح میں ختم قرآن پر طے کر کے یا بلا طے کیے ہوئے لین دین شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ تمام ہی معتبر فتاوی جات میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند فتاوی جات کو نقل کرتا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ اس کی صفحہ 392، باقیات فتاوی رشیدیہ جو جدید چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی صفحہ 517، فتاوی مظاہر علوم سہارنپور پہلی جلد صفحہ 48، امداد الفتاوی پہلی جلد صفحہ 481، کفایت المفتی جو پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 343 اور جو نیا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 365، فتاوی دارالعلوم دیوبند اس کی چوتھی جلد صفحہ 246، جواہر الفقہ پہلی جلد صفحہ 382، فتاوی محمودیہ جو ڈھابل کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 17ویں جلد صفحہ 67 سے صفحہ 72 تک، احسن الفتاوی تیسری جلد صفحہ
514 फतावा रहीमिया पहली जिल्द सफ़ा 349, और जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी छठी जिल्द सफ़ा 235 और 245 पर है। अब ये यहाँ वाज़ेह रहे कि तरावी में कुरान की समाअत पर भी उजरत मुकर्रर करना जायज़ नहीं है। सामे जो सुनने वाले हैं, एक होता है पढ़ाने वाला इमाम और एक सुनने वाला जो है वो, तो न सामे के लिए मुकर्रर करना जायज़ है और न ही क्या नाम है सुनाने वाले के लिए मुकर्रर करना जायज़ है। इस बारे में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले जवाज़ का फतवा दिया था, बाद में हज़रत ने खुद ही रुजू कर लिया, और अदम जवाज़ का फतवा फिर बाद में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिया, जो अत-तज़कीर व तहज़ीब में दूसरी जिल्द सफ़ा 383 पर दर्ज है, जिसको नकल किया है मुफ्ती शब्बीर साहब ने बहवाला इज़ाहुल मसाइल सफ़ा 27 पर। बाद हज़रात इमामत और तालीम पर इसको क़यास करते हैं और ये कहते हैं कि इसमें जब तरावी क्या नाम है कुरान करीम पढ़ाया जाता है तो वहाँ तो पैसा लिया जाता है, और यहाँ जो है तरावी पढ़ा रहे तो इस पे पैसा नहीं, ये कैसी सूरत है। तो ये बाज़ लोग जो है तालीम पर इसको क़यास करते हैं। तो इस सिलसिले में जानना चाहिए कि तरावी में कुरान पाक की उजरत के जवाज़ के जो हजरात तरावी में ख़त्म कुरान की उजरत के जवाज़ के कायल है, जो हजरात के तरावी में ख़त्म किया जाए फिर उस पर जो है पैसा वगैरह लिया जाए तो कायल है, लेकिन उन हजरात का ये इस्तिदलाल क़यास माल फारिक है कि तालीम पर इसको क़यास करना ये क़यास दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इमामत और तालीम ये एक ऐसी ज़रूरतें हैं कि जिनका नज़्म ना होने से निज़ाम शरीयत में खलल आ सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जब मस्जिद में इमाम नहीं होता है तो फिर क्या नाम है जैसे तैसे जो कोई आता है वो नमाज़ पढ़ाता हुआ चला जाता है, कैसा मिले कैसा ना मिले। और अगर तालीम ना रहेगी तो फिर बच्चों को कुरान करीम की और दीन की तालीम कैसे हासिल होगी, और फिर ये कि कुरान करीम को जब सीखा नहीं जाएगा तो फिर नमाज़ों का एहतमाम नहीं, दीन का माहौल नहीं रहेगा, तो ये ज़ाया होने का खदशा है। लेकिन तरावी में ऐसी कोई बात है ही नहीं, जबकि तरावी में ख़त्म कुरान इस दर्जे की ज़रूरत नहीं है कि ये कहा जाए कि अगर ख़त्म कुरान ना हुआ तो दीन ख़तरे में पड़ जाएगा, या ये कि अगर तरावी की नमाज में कुरान करीम मुकम्मल नहीं हुआ तो तरावी नहीं हुई, रमज़ान ही नहीं हुआ। ये तो ऐसा नहीं है। तरावी तो हुक्म है कि अगर आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अलम तरह से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। लिहाजा ख़त्म कुरान और इमामत और तालीम की ज़रूरत के एतबार से एक दर्जे में रखना ये खिलाफ माकूल है। ये इस तरीक़े से इसके ऊपर क़यास करना ये दुरुस्त नहीं है। तरावी 1 महीना है और कुरान पाक की तालीम ज़िंदगी भर तक है। लिहाजा 1 महीने की तालीम के लिए ये 1 महीने के पूरी ज़िंदगी की तालीम के लिए 1 महीने को ये कहा जाए कि नहीं अब इसमें भी उजरत है, तो ये जायज़ नहीं है। ये किसी भी फ़िरक़े वाले के लिए भी, चाहे देवबंदी हो, बरेली हो, अहले हदीस हो या और भी कोई, किसी के लिए भी जायज़ नहीं। अब जो लोग लेते हैं वो लेना ना लेना एक अलग बहस है, वो क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या मजबूरी है, उससे हमको सरोकार नहीं, लेकिन इस तरीक़े से लेना ये जायज़ नहीं है। सही बात यही है कि ख़त्म कुरान का महज तिलावत मुजर्रदा जैसा है, यानी खालिस तिलावत के हुक्म में है, जिस पर उजरत के जवाज़ का कोई भी कायल नहीं है कि कुरान करीम को पढ़ा जाए और उस पर उजरत हासिल की जाए। हमारे उलमा में से, अकाबिरीन उलमा फ़ुक़हा में से कोई भी इसके जवाज़ का कायल नहीं है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ख़त्म कुरान पर लेन देन के रिवाज ने हुफ़्फ़ाज़ की हैसियत को उर्फिया तौर पर मजरूह करके रख दिया है, और ये कहते हैं कि अरे फ़लाँ हाफिज़ तो बहुत पैसा लेता है। जिन जगहों पर हुफ़्फ़ाज़ को उजरत देने का रिवाज है वहाँ देने वालों के नज़र में उनकी कोई कदर व कीमत नहीं रहती, हमने खुद भी देखा है। और हुफ़्फ़ाज़ की बेवक़ाती दरअसल दीन की बेवक़ाती होगी, जो इस तरीक़े से गुनाह होता है आवाम को। इसलिए ज़रूरी है कि हम तरावी में लेन देन के वबा पर रोक लगाए और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करते हुए नाजायज़ ज़राए आमदनी को छोड़कर हलाल आमदनी हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें हिर्स, तमा, लालच से महफूज रखे। इस सिलसिले में
एक फतवा एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़र वली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब तो वो दुनिया से रुखसत हो गए, उन्होंने कहा कि तरावी पर हुफ़ाज़ को इतना इतना पैसा देना चाहिए। तो देखिए, हम हज़रत का अदब व एहतराम करते थे ज़िंदगी में, अब दुनिया से रुखसत हो गए तो हम उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। उनका ये तफर्रुद तो हो सकता है, लेकिन जुमहूर उलमा इस बात के कायल नहीं हैं। आपको देना है तो इस सिलसिले में गालिबन मुझे एक बात याद आती है कि हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे या तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहे थे। तो उस वक्त तरावीह के बहस में हज़रत ने फरमाया कि देखो, अगर तुम्हें हुफ़ाज़ की खिदमत करनी है तो उसमें ज़्यादा ढोल तमाशे की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा इधर उधर दाएं बाएं करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप में से बहुत से लोग हज़रत आइम्मा किराम को बंद मुट्ठी सलाम दुआ करते, मुसाफा करके उनको कुछ दे दिया तो ये उनके लिए जायज़ है, कोई हरज नहीं है। ये उनको आप उजरत समझ करके नहीं दे रहे, बल्कि आप उनको हदिया दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आप किसी से कुछ लिए बगैर, या आपका अपना माल है, समझिए कि मेरा 100 रुपया है, तो मैं अपना माल, मुझको तो इख्तियार है किसी को भी देने का, तो आप शहरों के अंदर चंदा करने के बजाय, मालदारों से चंदा करने के बजाय, गली कूची में चंदा करने के बजाय, जिन हजरात को जो कुछ देना है वो मुंह बंद करके खामोशी के साथ वो दे दे, तो इसमें कोई हरज नहीं। हजरत फरमाया करते थे, मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो लोग देने वाले होते हैं वो बंद मुट्ठी में दे देते, वो कोई शोर शगाफा नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को देना नहीं होता है वो दुनिया भर के मसले पूछते। ये हजरत का जुमला है। उसके बाद बात ख़त्म कर दी हजरत ने। तो मैं भी कहता हूँ कि अगर आपको देना है तो आप अपना ज़ाती पैसा जब चाहे जिस किसी को भी चाहे दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने तौर पर दे दीजिए, बदमुठी करके, कोई शोर शगाफा नहीं, तो कोई हरज नहीं। लेकिन आजकल होता क्या है, आम तौर पर जो हो रहा है हम ये देख रहे हैं, वो इस तरीके से कि कमेटी बैठाई जाती है, कुछ लोगों को बैठाया जाता है, चंदा किया जाता है, महल्ले के अंदर चंदा किया जाता है, और महल्ले के अंदर चंदा करके फिर हफ़ाज़ को दिया जाता है। बसा औक़ात गाड़ी दी जाती है और पैसा दिया जाता है और जोड़े शोरे दिए जाते हैं और बहुत कुछ उनको दिया जाता है। तो इस तरीके से ये देना और शोर शकाफा करके ये चंदा करना और तरावी के नाम पर चंदा करना, ये सरासर नाजायज़ और हराम है। इस तरीके से उजरत लेना भी जायज़ नहीं, देना भी जायज़ नहीं। अगर हाफिज़ ने लिया तो हाफिज़ पढ़ने वाले को भी इसका कोई सवाब नहीं, पढ़ाने वाले को भी इस पर कोई सवाब नहीं। इससे बेहतर है कि आप अलम तरह से तरावी पढ़ लीजिए, ये बेहतर है बनिस्बत आप किसी हाफिज़ को कुछ देने के बजाय। इसलिए हमारे उलमा, अकाबिरीन उलमा, जमहूर उलमा का यही फतवा है कि तरावीह की नमाज पर उजरत लेना ये जायज़ नहीं है। इसलिए हम इस पर अमल करें, अपनी नमाज को ख़राब ना करने की कोशिश करें। जो हुफ़ाज़ को किसी ने खुद अपने तौर पर कुछ हदिया दे दिया, कोई शोर शगाफा नहीं, कुछ नहीं, अपने तौर पर जैसे अइम्मा को या किसी और को भी हदिया दिया जाता है, बंद मुट्ठी में आप दे दिए तो ठीक है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। आपका अपना ज़ाती माल है, अब इसको ये नहीं कि बाहर जाकर के आप तबसरा कीजिए, ये भी जायज़ नहीं, बल्कि आप बंद मुट्ठी में दे करके और खामोशी को इख्तियार कीजिए कि हमने अल्लाह के लिए दिया है, अल्लाह के नाम पर दिया है, तो इसमें कोई शोर शगफ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये तो अकाबिरीन उलमा ने मना किया है। इस सिलसिले में हम भी अभी तक इसी फतवे पर कायम हैं कि हमने भी तरावीह के सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तरावीह का पैसा लेना देना ये जायज़ नहीं है। अब बाज़ औक़ात, बसा औक़ात बड़े बड़े शहरों में हमने देखा कि मस्जिद कमेटी मस्जिद के माल में से, जो वक्फ़ का माल होता है, उस माल में से हुफ़ाज़ को हदिये के नाम पर देती है। तो हुफ़ाज़ को इस माल को देना ये मस्जिद कमेटी का जायज़ नहीं, इसलिए कि मस्जिद के नाम पर जो वक्फ़ शुदा माल है, इसको तरावीह के नाम पर हाफिज़ जो तरावी पढ़ाने वाले हैं उनको देना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। थोड़ी बहुत इसकी तफसील जो है किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 518 और 519 पर भी की गई है, वहाँ भी देख सकते हैं।